Hello guys, I hope you're all doing really great today. This is Mandeep and you're watching the English Family. So guys, today we will learn about how to write a bar graph of writing task 1. So basically, first and foremost you have to understand what is a bar graph, or you can say what is a bar chart. Okay, so a bar graph or a bar chart represents categorical data with comparisons. Okay, मतलब इसमें आपको डाटा प्रेजेंट किया जाता है with categories and there are some comparisons that are made. Okay, so understand this thing that bar graph, they are of two types. They can be horizontal or they can be vertical. आपको जो information दी जाएगी वो horizontal भी हो सकती है as well as वो vertical भी हो सकती है. Horizontal मतलब इस तरीके से आएगी आपको, ठीक है, और vertical मतलब वो longitudinal upward direction में होगी, ठीक है. So in general you will find rectangular bars with lengths and heights. Okay, so in simple terms, as bar graph represents a diagrammatic comparison of distinct variables. Okay, so understand this thing कि आपको बार ग्राफ जो होगा देयर आर 5 मेन स्टेप्स, जिसके स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में हाउ टू सॉल्व अ बार ग्राफ उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है. सो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके बार ग्राफ सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस. ओके, सो द 5 steps that you must follow while writing your bar graph is, first of all, not even bar graph, even every question of writing task 1. Okay, so first of all, the first thing that you will see is you have to analyze the question. Second thing, you have to identify the main features. Now this is the instruction part, this is the preparatory part, जहाँ पे आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है बार ग्राफ अटेम्प्ट करने के लिए. Now third point is you have to start writing the bar graph. Third is you have to write an introduction. Fourth point is you have to write an overview, and fifth is you have to write detailed paragraph, that is BP1 and BP2. Okay, so you have to simply प्लान दिस प्रोसेस. ईजिली आप ये कर सकते हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें कोई लर्न करने की ज़रूरत है. इज जस्ट दैट जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं दीज आर द प्रिपरेटरी पॉइंट्स, एंड आफ्टर दैट आपको जो नीचे वाले 3 पॉइंट्स हैं वो आपको ईजिली हेल्प करेंगे राइटिंग टास्क को अटेम्प्ट करने में. जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है जिसको हम प्रिपरेटरी पार्ट कह रहे हैं, इट विल ओनली टेक अराउंड 5 मिनट्स ओनली. इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने किस हिसाब से आगे अटेम्प्ट करना क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको प्लान आउट करने के लिए आपका क्वेश्चन आपने किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है. ओके, सो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल को यूज करते हुए ही और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने एक बार ग्राफ का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. You can see it on your screens. The question is, the bar graph below shows the sectors of contribution to India's gross domestic products from 1960 to 2000. Okay, and this is the question part, and now is the second statement of the bar graph, that is instruction part. That is, you have to summarize the information by selecting and reporting the main features, and you have to make comparisons wherever they are relevant. Okay, so the question is, I'll minimize the screen for you guys. Now you can see the question is yes. So the question is about the contribution as percentage of India's GDP. So there are 3 sectors that are usually involved. First is agriculture sector, then it is industry sector, and third is of service sector. Okay, so these are the 3 sectors. इसमें आपको जो वैल्यू है वो परसेंटेज में दी हुई है, एंड द ईयर्स दैट आर गिवन दीज आर फ्रॉम 1960 to 2000. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप 1 जो हमने इसमें करना है, दैट इज यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अगर आप इसको मिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप नहीं देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. आपको नहीं समझ आएगा कि आगे जो प्लान आउट जो होता है सबसे पहले क्वेश्चन को उसको इसी से करना पड़ेगा. आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन जो कि आपको दिया. एनालाइज का मतलब ये नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड अब आप उसका मीनिंग ढूंढने बैठ जाए क्वेश्चन में. आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो
इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट है, इन वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि ग्राफ क्या है, उसको ध्यान में रखना है, और जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इग्नोर करनी है। मैंने स्क्रीन पर हाईलाइट किए हुए हैं पार्ट्स जो आपको यूजुअली इग्नोर करने होते हैं। दैट इज, अगर मैं ये पार्ट्स इग्नोर करूँ, इसको हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करूँ द बिलो शोज, इसको हो गया, या ये जो सेकंड पार्ट स्टेटमेंट जो होती है जिसमें आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सो ये पार्ट जो होता है इसको आप यूजुअली इग्नोर कर सकते हैं, इसमें एज सच कोई क्वेश्चन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, ठीक है। सो आपको ध्यान क्या रखना है, जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट होती है क्वेश्चन की, उसमें जो वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, दैट इज द बार चार्ट, whether it is a bar chart or a line graph or a process question. So ये आपको ध्यान में रखना है. Then second is the sector contribution to India's gross domestic product from the year 1960 to 2000. So अब इसमें क्या है, so every question, just understand this thing, every question will consist of three things. Okay, sentence one is a brief description of the graphic representation. आपको बताया जाएगा कि जो graphic representation है वो किस चीज़ की है. Then sentence second is of instructions, जहाँ पर instructions दी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से question attempt करना है. Now third one is the graphic representation. क्या होती है आपकी graphic representation? एक ग्राफ है, या तो ये चार्ट है, या ये टेबल है, और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है. सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि एक क्वेश्चन जो होता है वो कैरी करता है. नाउ द सेंटेंस सेकंड जो है, इट टेल्स यू that you're supposed to do three things. What are those three things? First is you have to select the main features. Now second thing is you have to write about the main features. Now third part is you have to compare the main features. ओके, सो आपको हर एक डिटेल को नोटिस नहीं करना, हर एक डिटेल को आपको ध्यान में नहीं लेना, ना ही उसको अपने राइटिंग टास्क में लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया जाता है, आपको स्पेसिफिक वर्ड्स दिए जाते हैं, और आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको आपने उतने ही टाइम पे लिखना होता है. सो आपको कहा गया, अगर आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आपको मेन फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको सबसे पहले उसी चीज़ पे फोकस करना है, rather than revolving here and there. Okay, so first thing is you have to select the main features, second is you have to write about the main features, and third is you have to compare them wherever relevant है. ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हमेशा कंपेयर करते हो लिख दो, जहाँ पे आपको लग रहा है ये रेलिवेंट है वहाँ पे you can compare these features. Okay, so next thing is, यही जो आपको बोला था that आपको हर एक इंफॉर्मेशन नहीं देनी, यू हैव टू जस्ट गिव द मेन फीचर्स. उन्होंने आपको नहीं बोला कि आपको हर एक चीज़ के बारे में लिखना है, तो जस्ट पिक आउट 2 to 3 की फीचर्स, एंड आपके पास यू विल हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल टू राइट अबाउट. ओके, नाउ understand one more thing, that basically there are two types of bar graph that usually come in the exam. Okay, so what are these two types? First is your static bar graphs and second is your dynamic bar graphs. अब बार ग्राफ स्टैटिक है या बार ग्राफ डायनेमिक है, इसका आपके टास्क के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ आ सके कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, ना आपको किस तरीके से कौन सा टेंस या कौन सी वोकैब यूज़ करते हो आपको जो राइटिंग टास्क है वो लिखना है, ठीक है. Now first is your dynamic bar graphs. Now dynamic bar graph में क्या होता है कि जो information है वो it comes from several points in time. जो information है वो एक time period से belong नहीं करती, different time period से information जो है वो ली जाती है and वहाँ पे एक bar graph में represent की जाती है. Now second one is जो static bar graph, जो कि usually कम आता है, कंपैरेटिवली कम आता है. सो स्टैटिक बार ग्राफ क्या होता है, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एक ही टाइम पीरियड से दी जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट देयर इज अ बार ग्राफ अबाउट it is about you need to compare the different variables. This is a bar graph which is representing different leisure activities favored by Canadian boys and girls. ठीक है, so these are activities are sports, computer games, music and shopping, and they are preferred by boys and girls. तो इनके बारे में आपको सिर्फ एक ही टाइम पीरियड से जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इट कम्स अंडर स्टैटिक बार ग्राफ. बट जब इंफॉर्मेशन जो आपको डिफरेंट टाइम पीरियड से लेके एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट की जाए तो दैट कम्स अंडर योर डायनेमिक बार ग्राफ. नाउ वी विल सॉल्व अ डायनेमिक बार ग्राफ. ऐसे बार ग्राफ स्पेसिफिकली सॉल्व जो किया जाता है वो एक ही तरीके से किया जाता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड जस्ट फॉर योर क्लियरेंस कि आपको पता चले कौन सा टेंस आपको यूज करना है. नाउ वी विल कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज
you have to identify the main features. आपको जो मेन फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं. अब ये ध्यान रखिए कि जो आपको राइटिंग टास्क जो आपको होता है, आपको सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट करना होता है. एग्जामिनर ने आपकी मैथमेटिक्स की जो एबिलिटी है उसको नहीं करना. तो ये भूल जाइए कि आपको बारग्राफ क्या होता है, एग्जाम में इतना डिफिकल्ट बारग्राफ आए कि आपको समझ ही ना आए कि उसमें क्या किया. ऐसा कभी नहीं होगा. इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ईजी होती है. एग्जामिनर ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाले होता है क्वेश्चन वो, ताकि एक नॉर्मल बच्चे को भी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ की. ठीक है, आपकी सिर्फ लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करनी है, उसने आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी वहाँ नहीं टेस्ट करनी. ठीक है. सो इसमें क्या करना होता है, सेकंड पॉइंट में जब आपने एनालाइज कर लिया क्वेश्चन, तो सेकंड पॉइंट में आपको सिर्फ मेन फीचर्स देखने हैं कि ये जो पूरा बारग्राफ है इसमें कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो मेन है. सो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूजुअली आस्क योरसेल्फ दिस फ्यू क्वेश्चंस. जब भी आपको ध्यान लगे कि आपको मेन फीचर्स कैसे ढूंढने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि व्हाट इंफॉर्मेशन डू द टू एक्सिस गिव. ओके, और इज इट डायनेमिक और स्टैटिक, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, what are the time periods, or you can say what can you learn from the title and the labels. आपको लेबल और टाइटल में क्या क्या समझ आ रहा है. ठीक है, अगर ये बारग्राफ डायनेमिक है या स्टैटिक है, या इन्फॉर्मेशन जो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे दी जाती है वो कौन सी होती है. ठीक है, और कि ये कौन सा टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहा है, या फिर व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस ट्रेंड्स क्या है. अगर कोई सिमिलरली कोई पीक पे जा रही है इन्फॉर्मेशन, या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है किसी चीज़ का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बारग्राफ, अगर कौन सा जो बार है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे है, कौन सा लोएस्ट पे है. और या फिर आर देयर एनी नोटेबल सिमिलैरिटीज, कोई सिमिलैरिटी दिख रही है अगर आपको, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी आवर टुडेज प्रैक्टिस ग्राफ अगेन. दिस इज द प्रैक्टिस ग्राफ ऑफ कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी, जो कि 3 सेक्टर्स में दी गई है, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. नाउ अगेन आपको इसमें अगर देखा जाए, इस ग्राफ में अगर आपको 3 मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करने हो तो वो बहुत ईजी है. सबसे पहले मैं बात कर लूँगी एग्रीकल्चर सेक्टर की. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द डार्क पिंक वन, आप देख सकते हैं. अब फर्स्ट फीचर क्या आ जाएगा कि अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इट ड्रॉप्ड स्टेडिली. ठीक है, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो सबसे डार्क पिंक लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर एग्रीकल्चर सेक्टर. सो दिस एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर जो है ये ड्रॉप होता जा रहा है इसकी परसेंटेज. ठीक है. नाउ सेकंड फीचर जो है उसमें हमने सर्विस सेक्टर को चूज किया. सर्विस सेक्टर इज द लाइट वन, लाइटेस्ट वन, not the middle one, the lightest or the third line is representing the service sector. आप यहाँ देख सकते हैं सर्विस सेक्टर का क्या मेन फीचर लिखा गया है कि the contribution of the service sector it increased by each decade. हर एक डिकेड के साथ जो कंट्रीब्यूशन थी सर्विस सेक्टर की वो क्या हुई, इंक्रीज होती गई. आप देख सकते हैं 1960 में इट वाज अराउंड 15%, 1970 में इट वाज अबव 20%, 1980 में इट वाज नियर अबाउट 30%, 1919 में इट वाज more than 40%, it was around 45%, and in 2000 it was more than 60%. So it steadily rises with the coming years. Now in the third feature you can easily say that where we will be talking about the industry sector, that is industry remains static from the year 1980 to 2000. 1980 says static, the industry sector is the middle line, the not so dark and not so light one line. In 1980 we have written in 1980, from 1980 to 2000, in the year 1980, 1919 and 2000 it रिप्रेजेंटेड एज स्टैटिकनेस. एक स्टैटिक है क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इट रिमेन्स एट 25%. एक तीनों ईयर्स में जो इन्फॉर्मेशन थी वो स्टेबल हो गई थी. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेन फीचर्स दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई. नाउ यहाँ पे सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं फीचर्स, वी विल नॉट स्टार्ट राइटिंग एट दिस पॉइंट. फर्स्टली वी विल जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन, सेकेंडली वी विल जस्ट अंडरस्टैंड और राइट और जस्ट सी द मेन फीचर्स, कौन कौन से मेन फीचर्स की दिए गए हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है उनको. देन इन द नेक्स्ट थिंग नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज जहाँ पे आपको एक दिमाग में रखना है कि आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है. ठीक है. आपको पैटर्न जो बेसिक फॉलो करना होता है दैट इज यू हैव टू राइट 4 पैराग्राफ्स. 4 पैराग्राफ लिखने होते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ इज ऑफ ओवरव्यू, थर्ड पैराग्राफ इज वेयर यू स्टार्ट गिविंग योर डिटेल्स, एंड फोर्थ पैराग्राफ वेयर यू गिव रिमेनिंग ऑफ द डिटेल्स एंड यू विल फिनिश योर राइटिंग टास्क हियर.
इसकी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है जहाँ पे बेसिक फॉर्मेट जो है राइटिंग टास्क का, जो कि हर एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है राइटिंग टास्क में फॉलो करता है, वो आगे एक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे, आप वो खोल के देख सकते हैं. सो यू नो टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है. सो नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेप. Third step is you have to start writing your bar graph at this point of time. ठीक है, आपको third step क्या करना है? You have done your first step, you have done your second step. It will take around only 3 to 4 minutes और maximum 5 minutes. इससे ज़्यादा आपका टाइम यहाँ नहीं वेस्ट होगा. जब फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं, जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेन फीचर्स, इट विल ओनली टेक अराउंड 5 minutes. आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर राइटिंग टास्क विद फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ इंट्रोडक्शन. नाउ इंट्रोडक्शन अगेन आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो गिवन स्टेटमेंट होगी उसको आपको इस तरह से चेंज करके लिखना है, ताकि जो फॉर्मर और जो लेटर स्टेटमेंट है उसका मीनिंग सेम रहे, बट उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाए. सो what you have to do is writing the same sentence in a different way without changing its meaning. इतना ध्यान रखिए, आपको मीनिंग चेंज किए बिना उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है चेंज करना होता है. नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन that is given, that is the bar chart below shows the sector's contribution to India's gross domestic product from 1960 to 2000. Now you can see that ये जो क्वेश्चन था ये सिंपल आपको गिवन क्वेश्चन था. अब इस चीज़ को पैराफ्रेज किस तरीके से हम करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे द बार ग्राफ illustrates the relative percentage contributions made by, अब यहाँ पे क्या किया, एग्रीकल्चर डिफरेंट सेक्टर्स थे तो हमने उन सेक्टर्स को इलेबोरेट करके ओपन करके लिख दिया. कौन कौन से सेक्टर्स हैं? फर्स्ट इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स टू द इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1960 एंड 2000. इसके हिसाब से आपने ईयर्स जो हैं वो मेंशन कर देने हैं. ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए जब ईयर्स मेंशन करेंगे कभी भी इन द ईयर 1960 एंड 2000 ना लिखें, क्योंकि वो पैराफ्रेजिंग क्या हो जाती है, वो आपकी यहाँ आके गलत हो जाएगी. हमने बिटवीन द ईयर 1960 और 2000 लिख सकते हैं, या फिर फ्रॉम द ईयर 1960 अंटिल द ईयर 2000 लिख के भी इसको हम पैराफ्रेज कर सकते हैं. नाउ दिस इज ऑल यू हैव टू डू इन योर फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन, where you have to just do the paraphrasing. अब हम सेक्टर्स हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कीवर्ड जो था आपके सेक्टर्स एंड कंट्रीब्यूशन था, इसको हमने चेंज नहीं किया, इसको हमने नहीं छेड़ा. क्यों? अगर हम इसको छेड़ते तो इससे क्या हो जाना था, अगर हम इसको सिनोनिम्स ट्राई करते यूज करने का ताकि इसको हम और अच्छी तरह पैराफ्रेज कर सके, तो उससे कुछ नहीं होना था, उससे आपका मीनिंग जो होना था सेंटेंस का वो खराब हो जाना था, जो कि हमने नहीं करना. ठीक है, so this is all you have to do for your first paragraph, that is of introduction. Now we will see the step 4th, where you have to write an overview. It is your second paragraph जहाँ पे आपको एक ओवरव्यू लिखना होता है. मैं फिर रिपीट करूँगी, हर एक ओवरव्यू में आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहली बात सिर्फ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है. यहाँ पे ओवरव्यू में आपको हर एक डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, एंड जब पे कंपैरिजन, इफ़ यू थिंक कंपैरिजन रेलिवेंट बना सकते हैं आप, तो वहाँ पे कंपैरिजन ज़रूर बनाइए स्टेटमेंट में. ठीक है, एंड आपको जितने डिटेल्स हो सके उतना कम देना. ठीक है, सो जो हमने मेन 3 फीचर्स आइडेंटिफाई किए थे वही हमने यहाँ लिख देना है. कौन कौन से 3 फीचर्स थे? दीज आर द 3 फीचर्स जो हमने ऑलरेडी सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिए हैं. वही 3 फीचर्स अब हमने अपने ओवरव्यू के पैराग्राफ में लिख लेने हैं. नाउ हम देख सकते हैं ओवरव्यू का पैराग्राफ यहाँ पे. नाउ कैसे लिख सकते हो आप ओवरव्यू के पैराग्राफ को? ओवरऑल इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट over the whole period of time, the significance of agriculture declined steadily while the services grew in the importance decade by decade. A different pattern emerged from industry, which initially showed a slowly increasing percentage but then plateaued from 1980 onwards.
इसमें ये नहीं कि जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको वर्ड बाय वर्ड आप वैसे लिख दो, आपको पैराफ्रेज करके प्रॉपर एक 2 to 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हुए ओवरव्यू में लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ओवरव्यू में फॉर एग्जांपल दे विल राइट ओवरऑल इट इज क्वाइट अपेरेंट दैट द सिग्निफिकेंस इंक्रीज, देयर वाज सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर व्हाइल देयर वाज और वेयर एज देयर वाज स्टडी डिक्लाइन इन द सर्विस सेक्टर। तो उससे क्या होता है, एक ही पैराग्राफ में क्या करते हैं, अगर 3-4 लाइंस हों तो उसमें क्या होता है आपके बीच में कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आता, जो कि बहुत गलत बात है। आपको हमेशा ओवरव्यू में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ। आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना है, यहाँ पे आपको बहुत सिंपल और क्लियर सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। सो छोटे छोटे 2 से 3 सेंटेंसेस बनाइए एंड 2 से 3 जितने हो सके आप मेन फीचर्स यहाँ पे बताएं, जिनको आप आगे डिटेल्स में जो है वो और एलेबोरेट करेंगे। Now this is all for your overview for your second paragraph. Now we will come on the 5th step, जहाँ पे आपको where you have to write your first detail paragraph. अब यहाँ पे क्या आ गया, जो पैराग्राफ 3rd and 4th है, these are your detail paragraph, जहाँ पे आपको जो आपने की फीचर्स जो आइडेंटिफाई किए थे ओवरव्यू में उनके हिसाब से उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हुए आपने वो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा एलेबोरेट करके एग्जामिनर को प्रेजेंट करनी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, ओवरव्यू में 3 फीचर्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए थे। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट 2 फीचर्स आइडेंटिफाई किए थे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन BP1 में दे देंगे एंड जो लास्ट फीचर आइडेंटिफाई किया था उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम BP2 में दे देंगे, ठीक है। सो आपने जो फर्स्ट 2 फीचर्स जो आपके आइडेंटिफाई किए थे वो क्या थे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्रॉप स्टडीली एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज्ड बाय ईच डिकेड। सो दीज वर द 2 पॉइंट्स, इनको लेते हुए ही हम पैराग्राफ 3rd जो है वो लिखेंगे। नाउ व्हाट इज योर पैराग्राफ 3rd। अब यहीं पे मैंने ये दोनों फीचर्स को लेके आइडेंटिफाई किया है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल में दिया है। नाउ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन दैट ये हो गया आपका का पूरा पैराग्राफ 3, जिसको हम बोलेंगे BP1। सो इसमें आप डिटेल्स कैसे लिख सकते हैं, ऑन कमिंग टू द डिटेल्स, in 1960 agriculture sector contributed by far the highest percentage of GDP, peaking at 62%, but it then dropped in a steady increments to a low of 12% in 2000. The service sector, on the other hand, had a relatively minor impact on the economy in the year 1960. This situation changed gradually at first, then its percentage contribution jumping from 28 to 43% between the year 1980 and 1990. By the year 2000, it matched the high point reached by agriculture in 1960, showing a reversal in the overall trend. अब इसमें क्या किया, हमने ईयर्स की भी बात की है, हमने यहाँ पे प्रॉपर परसेंटेज जितनी प्रिसाइसली हम बता सकते हैं उतना बताया है एंड जितना हमने सेक्टर्स जो हैं, जितने हाई पॉइंट्स थे, जितने लो पॉइंट्स थे, उनको हम लिख सकते थे वो हमने लिखा है, ठीक है। सो इसमें आपको इसी तरीके से डिटेल, इसलिए हम मना करते हैं कि आपको ओवरव्यू में जो है डिटेल्स ज़्यादा नहीं मेंशन करनी है, आपने नंबर ज़्यादा नहीं मेंशन करने हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें आपने BP1 में मेंशन करनी होती है, जो कि आपका 3rd पैराग्राफ होता है राइटिंग टास्क का, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि ओवरव्यू में वही चीज़ें लिख दी, BP1 में भी वही चीज़ें लिख दी, तो उससे क्या होगा, रेपिटेशन होगी, जो हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर 5th स्टेप। नाउ कम्स द 6th स्टेप, जहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द सेकेंड डिटेल पैराग्राफ। अब इसमें क्या करना है, हमने थर्ड फीचर जो था हमारा मेन, दैट वाज इंडस्ट्री रिमेन स्टैटिक फ्रॉम द ईयर 1980 to 2000। अब हमने इसको मेन पॉइंट रखते हुए इसके जो डिटेल्स होंगी वो हमने एलेबोरेट करके पैराग्राफ 4 दैट इज योर BP2 उसमें लिखनी है। नाउ व्हाट इज योर BP2? Now, industry remained a steady contributor to India's wealth throughout the period. As a sector, it grew marginally from 16% in 1960 to exactly a quarter in 1980, then remained static for the next 2 decades, maintaining a constant share of overall GDP. सो इस हिसाब से जो 3rd फीचर था उसको हमने प्रॉपरली विद डिटेल्स जो है, विद नंबर्स हमने प्रॉपरली उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर योर BP2
अब ये ध्यान रखिए, इसके बाद आप BP3 नहीं बनाएंगे, ये कोई या कोई 5th पैराग्राफ नहीं बनाएंगे, ना ही कभी भी बार ग्राफ के या किसी भी राइटिंग टास्क 1 में कभी भी BP2 के बाद कंक्लूजन लिखेंगे। हमने ओवरव्यू इसीलिए लिखा था ताकि एग्जामिनर को एक ब्रीफ समरी मिल जाए कि हम नीचे डिटेल्स में क्या दे रहे हैं, ठीक है। सो कभी भी राइटिंग टास्क 1 में कंक्लूजन जो है ना लिखें। नाउ इस जो हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है, इसको मैंने एक फुल फ्लेज कंबाइन करते हुए एक प्रॉपर राइटिंग टास्क ऑफ बारग्राफ मिक्स करके लिख दिया। आप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स एंड इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको जूम करके बाद में कंपैरेटिवली जो डायग्राम थी वो बायोग्राफ की उसके साथ कंपेयर करते हुए देख सकें कि मैंने यहाँ डिटेल्स जो हैं किस तरीके से मेंशन की हैं, ठीक है। So this is your first is your introduction paragraph, second is your overall, now third one is your BP1 and last paragraph is your BP2. So there were around 188 words in this complete task 1. तो कोशिश कीजिए 170, 160, 170, 75 तक आपके वर्ड्स हो। 200 से वर्ड्स कभी भी क्रॉस नहीं करना है। इफ़ यू विल cross or write more than 200 words, तो what will happen, you will start consuming your time of task 2, जो कि हमें नहीं करना, हमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि टास्क 1 जो है कंपैरेटिवली इजी होता है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, जस्ट आपको इंटरप्रेट करते हुए उसको आपको अपनी लैंग्वेज में समराइज करना होता है। बट टास्क 2 में आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको खुद से पॉइंट्स बना के लिखने होते हैं। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैंने यहाँ पे कुछ आपको आइल्स के बायोग्राफ के वोकैब इंक्लूड किए हैं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके कि किस तरीके से आप कैसे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप हर एक में, जैसे ओवरव्यू है या फिर BP1 BP2 में आप कैसे जो वर्ड्स हैं वोकैब जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू एनरिच योर वोकैबुलरी, टू एनहांस इट, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पास वर्ड्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कम होता है, वर्ड लिमिट हमारे पास कम होती है, तो हम कई बार कुछ वर्ड्स काफ़ी बार रिपीट कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना। कोशिश करनी है जितना हो सके हम जो वर्ड्स हैं उनकी रेपिटेशन कम करें, ठीक है। सो फॉर दैट आप इस वोकैब को यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली आईएलटीएस के जो बार चार्ट है उसमें वोकैब्स जो होती है किस तरीके से होती है, आपके अप वर्ब्स होते हैं, डाउन वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं आपकी डिग्री के, एंड कुछ स्टडी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो इसका एक मैंने टेबल बनाया, यस यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स। एक टेबल है, इसमें मैंने प्रॉपरली आपको बताया कि कौन से अप वर्ड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, कौन से डाउन वर्ब्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, देन देयर आर फ्यू एडजेक्टिव्स, ओके। नाउ देयर आर फ्यू एडवर्ब्स, देन स्टेडी एडजेक्टिव्स। आप देख सकते हैं जो अपवर्ब्स हैं उसमें क्या आता है, आपका ग्रो आ गया, लीप आ गया, राइज आ गया, पीक आ गया, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अपवर्ब्स। देन देयर आर डाउन वर्ड्स जिसमें हम डिक्लाइन, फॉल, बैक डाउन और डिसेंट जो है वर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। इन द एडजेक्टिव पार्ट यू कैन यूज़ द वर्ड ड्रास्टिक, ड्रामेटिक, ट्रमेंडस, रैपिड, ठीक है। या फिर इन द एडवर्ब पार्ट यू कैन यूज द सेम वर्ड्स बट डिफरेंट थोड़ा सा होता है वो एडवर्ब्स में, दैट इज ड्रास्टिकली, ड्रामेटिकली, ट्रमेंडसली और रैपिडली। एलवाई लग जाता है, जो एडजेक्टिव्स हैं इनके लास्ट में एलवाई हमने लगा दिया, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू स्टडी एडजेक्टिव्स, दैट इज स्टडी, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म और मॉडरेट। सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स जो कि आपको आपकी वोकैब को एनरिच करने में हेल्प करेंगे। एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो, और आपको थोड़ा सा इस वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा इजी लगे अगली बार जब भी आप बायोग्राफ अटेम्प्ट करेंगे। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।